معزز سے ویورس السلام علیکم۔ پاکستان کے بہت خوبصورت بیوٹی لوکیشن آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے، مگر ہم آج آپ کو ایک انتہائی خوبصورت ہڈن بیوٹی تھلبروک لے چلتے ہیں، جو کہ دنیا کی نظروں سے تاحال اوجھل ہیں، مگر خوبصورتی کے لحاظ سے جی بی کے ٹاپ 5 میں آتے ہیں۔ یوسائی مینمرگ کے بعد اگر گلگت بلتستان میں کوئی خوبصورت لوکیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھلبروک ہے، جہاں لش گرین سرسبز و شاداب پاسچر اور خوبصورت واکنگ ڈسٹینیشن پر بہت بڑے گلیشیئرز اور صاف شفاف کرسٹل چشمے کا پانی انتہائی دل لبا بہتے ہیں۔ تھلبروک کے سیاہ مندوں کے پھول اور ندی نالوں سے شور مچاتی بہتی ہوئی تھلے ویلی آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اس خوبصورت ویلی تک پہنچنے کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ کے گانچے کے ہیڈ کوارٹر خپلو سے رستہ شہرائی سیاچن سے ہوتے ہوئے سکن چت پیپڑی کے مقام پر دو خوبصورت لکڑی اور RCC کے برج جو کہ سب ڈویژن رغونے سے ملاتے ہیں، اور یہ دریائے شوق جسے قاتل دریا بھی کہا جاتا ہے کو کراس کرتے ہوئے بلغر سو سے ہوتا ہوا تحصیل چوک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مارخور کے جو اسٹیچو کے ساتھ شور مچاتی ہوئی بہتی کول کے پانی کے ساتھ اوپر کو جاتے ہوئے پھلدار درختوں نے اپنے حصار میں سنبھالے ہوئے شہرۂ امیر کبیر آپ کو سیدھا تھلبروک تک پہنچا دے گا۔ یہ گمبہ بردس ہیں جو کہ بلغار کا آخری گاؤں ہے۔ آٹم سیزن میں انتہائی خوبصورت لوکیشن تصور کیا جاتا ہے۔ یہ گوما بردست ہیں، گوما بردست جو کہ تھلے کا پہلا گاؤں ہے۔ یہاں سے تھلے شروع ہو جاتے ہیں اور سطح سمندر سے 2647 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ دل فریب اور لش گرین پاسچر سے ملحقہ آبادی، جہاں لکڑی سے بنے ہوئے انتہائی خوبصورت نقش کاری کیا وہ خوبصورت گنبد والا مسجد جو آپ اس گاؤں میں نظر آ رہے ہیں، اس گاؤں کو یارکھور یا چھوروں کہتے ہیں، جہاں پہ یارکھور اور التغاری ایک ساتھ آپ کو دیکھنے کے ملیں گے۔ اس کے علاوہ چنڈو اور ہڑنگ اس کا نظارہ بھی ایک ساتھ میں کر سکتے ہیں، جو کہ تھلے کا بالکل سینٹر کا گاؤں ہے۔ یہاں سے 6 گاؤں نیچے اور 8 گاؤں اوپر کی طرف موجود ہیں۔ تھلے کل 14 گاؤں پر مشتمل ہیں۔ اس خوبصورت آبادی کے سامنے جو نالا آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں 3 خوبصورت بڑے لیکس موجود ہیں، جن میں سے چھوزگانگ، ارزازگانگ اور گوما چھوزگانگ کا جو لیک ہیں سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہیں، لیکن ان میں سے بھی سب سے جو خوبصورت لیک ہیں یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں چھوزگانگ لیک، جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سامنے جو لٹل تبت جیسی خوبصورت آبادی آپ کو نظر آ رہی ہیں، اسے دلتر کہا جاتا ہے، جو آبادی کے لحاظ سے تھلے میں سب سے بڑا گاؤں تصور کی جاتی ہے۔ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ کھسومک ہے، اور کھاسومک بلتی زبان کا لفظ ہیں۔ یہ انسانی جسم کے سر کے حصے سے مراد لیا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ تھلے کے سر کے تاج پر پہنچے ہیں۔ سامنے جو خوبصورت نغلستان نظر آ رہے ہیں اسے خوب کہا جاتا ہے۔ یہ خوبصورت جو آبشار آپ دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی اونچائی پر موجود ہے، آلموسٹ 13,800 میٹرز کی ہائٹ پر ہیں۔ اس کے اوپر ایک خوبصورت پرستان ہے جہاں 2 لیکس ایک ساتھ میں ہیں، ایک دو شیخہ لیکس اور دوسرا خیمہ لیک۔ خیمہ لیک کافی بڑے ہیں، دو شیخہ لیک کا تھوڑا سا چھوٹے ہیں۔ اگر آپ ادھر پہنچ جائیں تو یقین جانیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پریوں کے شہر پہنچ چکے ہیں، اور آپ کے تمام تھکاوٹ جتنی بھی اونچائی سے آپ جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ یہ تھلبروک کا پہلا گاؤں ہے جہاں سے آپ کو 2 راستے ملیں گے، ایک مشرق کی سائڈ پہ اور ایک مغرب کی سائڈ پہ۔ آئیے پہلے ہم مشرق کی سائڈ سے چلتے ہیں۔ یہ جگہ زگامبو ہیں، مشرقی سائڈ سے نکلتے ہیں، پر سب سے پہلے جو خوبصورت ویو پوائنٹ ہیں وہ زگامبو کے ہیں، جہاں سے آپ کو تھلبروک بالکل صاف ستھرا آپ کو نظر آتے ہیں، اور آپ اپنے کیمروں میں اس کو محفوظ کیے بغیر آگے بڑھنے کو کبھی آپ کو دل نہیں کرتا۔ یہ گرین اور جنگلی گلاب کے بیچوں بیچ نظر آنے والا جو نالا ہے اسے باغمالوما کہا جاتا ہے، اور یہ بہت وسیع اور گلیشیئر کے لحاظ سے تھلے کا سب سے بڑا نالا ہے۔ یہاں پہ 3 چیزیں بہت خوبصورت اور قدر دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک اس کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے، دوسرے یہاں پہ بہت خوبصورت سنو لیکس ہیں، اور تیسرا جو ہے تھلے کا سب سے ہائیسٹ پیک اکارڈنگ ٹو دا وکیپیڈیا
7100 سب سے ٹاپ سنو رائکس پیکس اس ویلی میں ہیں. ٹل ٹوڈے کوئی اب تک جو ہے کلائمبر اس کو سبمٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ یہ راک بہت ٹف ہیں اور ساتھ میں اس کے جو سنو ہیں وہ بھی کافی اوپر سے ہیں. تو یہ ویلی بھی ٹورسٹ کا ایک اہم پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. خشلنگ مغرب کے سائڈ سے بروک کے حدود کا پہلا گاؤں ہے. اس کے ساتھ موجود جو نالہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے چھمبر کہا جاتا ہے. اس نالے میں 4800 میٹرز کے انتہائی خوبصورت پاس ایک ہیں جو کہ تھلے کو کرس سے لنک کرتا ہے اور انتہائی خوبصورت ٹریک موجود ہیں. یہ پاس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بالکل ٹاپ کے قریب کا ایریا ہے اور یہ دونسا کے حدود تھے. دونسا خوبصورتی اور ویو کے لحاظ سے تھلے بروک کا ایک اہم کی لوکیشن کنسیڈر کرتے ہیں. جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ دونسا کا ویو پوائنٹ ہے، جہاں سے آپ شماہدون اور شنکھنگ کا خوبصورت پاس اور اورمچھمک کا ایک ہڈن خوبصورت بیوٹی کو آپ ایٹ اے ٹائم دیکھ سکتے ہیں. بیسیکلی دونسا وہ ایک لوکیشن ہے جہاں سے تھلے لاک کے لیے ٹریک کرنا ہو یا وہ اس جگہ سے ٹریک کرتے ہیں، یا کہ مطلب وہ تھلے اور مچھمی کے سائڈ سے دونوں سائڈ سے آپ کو بہترین ٹریک کے روٹس موجود ہیں. اور یہاں بھی یہ خوبصورت پھولوں کے بیچ سے نکلتا ہوا یہ سرسبز و شاداب علاقے کو دونسا کہا جاتا ہے. اگر آپ مشرق سے جائیں سے تو واپس ہی مغرب سے آئیں، اگر مغرب سے جائیں تو آپ مشرق سے واپس ہی آئیں، آپ کو دونوں سائڈ کے ویو ملیں گے. اگر ارلی مارننگ جاتے ہیں تو آپ مشرق سے جائیں تاکہ آپ کو تصویر بنانے میں زیادہ خوبصورت آئیں گے، لیکن جب آپ واپس آئیں گے تو مشرق کی بجائے مغرب سے آئیں تو آپ سورج کے غروب ہونے کے ٹائم پہ آپ کی پکچر زیادہ خوبصورت آ سکتی ہیں. یہ دونوں آپ کو تھلے کا جو سب سے خوبصورت کی لوکیشن ہے تھلے بروک اور مچھمک تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں، جو کہ ایک خوبصورت پھولوں کی سرزمین ہے. وہاں پر آپ کو 2 خوبصورت ہوٹلس بھی ملیں گے. ایک ہوٹلس ہیں تھلے بروک ریزارٹس اور ایک تھلے ان گیسٹ ہاؤس ہیں. دونوں آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے، اس کے ساتھ میں آپ کو دکان پہ ملیں گے. ریسپیکٹڈ ویورس، آپ اس وقت تھلے ان گیسٹ ہاؤس اور تھلے بروک ریزورٹ دونوں کو ایٹ اے ٹائم دیکھ رہے ہیں. ہمارا مقصد تھلے کے خوبصورت چہرے کو آپ تک پہنچانا مقصود ہے. تھلے ان گیسٹ ہاؤس اور اگر تھلے بروک ریزورٹ کی کمپیریزن اگر آپ کو تھوڑا سا آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کر دیں تو تھلے ان گیسٹ ہاؤس چھوٹا سیٹ اپ ہیں، 2 رومز ہیں، ویل فرنش اور صاف ستھرا کوشیدہ رومس ہیں، ویل ایجوکیٹڈ پرسن اس کو رن کر رہے ہیں. ان کی کمپیریٹیولی اگر تھلے بروک ریزورٹ کو اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا سیٹ اپ ہے. کمرے کی تعداد ان کے پاس زیادہ ہے، ویل فرنش ہال ہیں، بہترین سیٹ اپ کا کچن ہے اور ایٹ اے ٹائم وہ 200 سے 300 لوگوں کو کھانے کا آدھا گھنٹے کے اندر ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. اگر لوکل ڈشز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کمپیریٹیولی میں کہتا ہوں کہ گانچھے میں اتنا اچھا کھانے والا ریسٹورنٹ نہیں ہے، کیونکہ پروفیشنل سرینا لیول کے شیفس ہیں. تو میں کھانے کے لیول سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تھلے بروک ریزورٹ میں تشریف لے جائیں. اگر آپ کے بعد افراد تعداد 2 4 5 ہیں یا تعداد کم ہیں تو روم کے حوالے سے میں تھلے ان گیسٹ ہاؤس کو پریفر کرتا ہوں. یہاں پہ تھلے بروک ریزورٹس میں کچھ گیسٹ تشریف فرمائیں، وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے لیکن ہم ان کے تاثرات ضرور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے گلگت بلتستان کے بہت سارے لینڈسکیپ کو دیکھے ہوں گے، لیکن ابھی اس وقت وہ تھلے بروک میں ہیں کہ وہ تھلے بروک کے حوالے سے کیا فرمانا پسند کریں گے. آئیے ہم ان کی زبانیں سنتے ہیں. ہم لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہاں آنے کے لیے ہم لوگ کنفیوز تھے کیونکہ یہ جگہ ایک تو ان ایکسپلورڈ بھی ہے اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا میں بھی اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. لیکن آج صبح ہم لوگ چلے ہیں، ہم لوگوں نے کھپلو میں اسٹے کیا تھا، وہاں سے تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لگے یہاں پہنچنے میں اور یہاں آ کے ہم لوگ بالکل شش و پنج میں رہ گئے کہ یہ اتنی اچھی اتنی پیاری ویلی جس میں آپ کو گلیشیئر بھی نظر آتا ہے، آپ کو دریا بھی نظر آتا ہے، دریا کے ساتھ ساتھ سٹریمز چل رہی ہیں اگر آپ کیمرہ میں دکھا سکیں نیچے، اور گرینری ہے. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ جو آپ کو سیزنل پھول نظر آ رہے ہیں اور ان میں کافی ورائٹی ہے اور موسم ہے یہاں کا. تو روڈ بالکل صاف تھا، یعنی اگر آپ اپنی گاڑی پہ آنا چاہیں تو تھوڑی ہلکی سپیڈ میں آ سکتے ہیں، بہتر ہی ہوگا کہ آپ 4 ویل ڈرائیو لے کر آئیں اور یہاں تک پہنچے. اگر جی بی میں نے تقریباً سارا جی بی ٹریول کیا ہوا ہے، یہ سائڈ بلتستان کی رہتی تھی
अगर कंपैरिजन लेवल पे आए तो जीबी में एक सबसे जो बड़ी बात होती है कि आपको ग्रीनरी थोड़ा कम देखने को मिलती है। यहाँ का लैंडस्केप खुश्क है और फिर हिमालयाज आपके साथ हैं, ग्लेशियर आपके साथ है, तो आपको थोड़ा खुश्का मिलता है। इस वैली की बहुत अच्छी बात यह है कि ये थ्रू आउट जहाँ से हमने रोड लिया है, मेन रोड से खपलू रोड को छोड़ा है, तब से ये ग्रीन है और जितना आप अंदर आते जाते हैं ये और खूबसूरत होती जाती है। और लोग एज यूजुअल पूरे जीबी के बहुत अच्छे हैं, हॉस्पिटेबल लोग हैं और आपका बहुत ज़्यादा वेलकम करने वाले लोग हैं। और इस जगह को अगर हम कंपेयर करें बाकी जगहों से तो मैं इसको अभी तक की जो जीबी में मैंने विजिट की है साइट्स, देवसाई, मिनीमर्ग और डुमेल के बाद सबसे अच्छी जो जगह मुझे लगी है वो ये वैली है। थले ब्रोक अगर हम बात करें तो बल्तिस्तान के हेडकोार्टर्स कर्दो से 110 किलोमीटर के और ज़िला गांचे के हेडकोार्टर खबलू से आलमोस्ट 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मौजूद एक इंतहाई हिडन ब्यूटी हैं जो कि सियाह पर अपनी सेहर तारी करती हैं। और एक दफ़ा अगर आप थले ब्रोक आएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार यहाँ पे आ जाएं और अल्लाह लतीफ़ के नारे आपके ज़बान से विर्द ना हो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि थले ब्रोक में इतनी अल्लाह पाक ने खूबसूरती निखारी हुई हैं जिसको देखना हर इंसान की किस्मत में कहाँ लिखी होती है। अगर थले की पॉपुलेशन की बात करें तो 1786 ग्राने और 14,055 की पॉपुलेशन है, जिसमें से 7,650 मेल और 6,405 फीमेल पर मुश्तमिल है। और ये इलाका 40 किलोमीटर के फासले पर बुर्द से लेकर थलेला के टॉप तक फैला हुआ है और अराउंड 38 वैलीज़ पर मुश्तमिल हैं। और अगर हम नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो ये 6 लेक्स और 6 ग्लेशियर और 6 पासेस पर मुश्तमिल है, जिसमें से थलेला ऑलरेडी ओपन है, इसके अलावा 5 पासेस टिल टुडे अनडिस्कवर है, जिसको अगर कोई डिस्कवर करना चाहते हैं तो बहुत ही हिडन ब्यूटी हैं, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। अगर यहाँ पे रोज़गार के हवाले से देखा जाए तो अराउंड 60% लोग जो हैं ज़राअत से वाबस्ता हैं। और ये प्रॉपर थले जो हैं थले वैली पूरा जो है सिंगल क्रॉपिंग जोन में आते हैं, जहाँ पे आलू, बैकवीट, गंदम, जो मटर वारा कसरत से ग्रोथ किया जाता है। और यहाँ पे 16 से अबाउ माल मवेशी को चराने के लिए पास्चर मौजूद हैं। माज़स वीवर्स, थोड़ा सा वक्त निकालें और इन पहाड़ों से दिल लगी करें, कुदरत की इन हसीन, दिल फरेब और दिलकश मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं। आपको यकीन नहीं आएंगे, जो जून जुलाई के महीने में जब शहरों में आपको पता है लू चल रही हैं, इंतहाई तपिश के आलम है, शदीद गर्मी है, तो आप नल से पानी पी नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे चलते पानी में 30 सेकेंड्स आप अपने हाथ या पाँव को नहीं रख सकते। आप चश्मे के पानी कुदरत के इन मौजज़ात को ज़रूर देखें। यक बस्ता हवाओं में झूलते जंगली गुलाब के फूल और रंग बरंगे फूलों की सरसराहट और शिंखंग और शमाहदून के खूबसूरत ग्लेशियर से बहते हुए पत्थरों से सर टकराता हुआ दरिए शौक से मिलने के आरज़ू लिए थले रिवर की शोर एक दफ़ा महसूस तो करें। अपने आँखों को बंद करें और अल्लाह को जहन में बिठाकर इस शोर को एक दफ़ा महसूस करें। यकीन जाने आप पूरी दुनिया भूल जाएंगे और अल्लाह के विर्द के बगैर और सुभान अल्लाह कहे बगैर आप नहीं रह सकते। थलेब्रो रिजॉर्ट से जस्ट 20 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर एक इंतहाई खूबसूरत डहलवान आते हैं और इस जगह को फांफों पर कहा जाता है। यहाँ पर जंगली गुलाब के मुख्तलिफ़ अक़साम के कलर के फूल आपको अब रेगुलरली आपको देखने को मिलेंगे, जो इस इलाके की खूबसूरती और इसके हुस्न को मज़ीद दोबाला कर रही हैं। ये फांफों पर टोक का व्यू पॉइंट हैं, जहाँ से आप पूरी थलेब्रो को आप व्यू कर सकते हैं। इवन कि थलेब्रो नहीं, अगर आपके कैमरे के जो मेगापिक्सल हैं अगर वो टफ़ हैं और अच्छी हैं तो यहाँ से आप खबलो खंजर तक का खूबसूरत नज़ारा अपने कैमरों में भी महफूज कर सकते हैं। और ये ग्लेशियर पर जाने का सबसे बेहतरीन और आसान ट्रैक इसी रोड से हैं। आप यहाँ से आएँ और यहाँ से शिंखांग का जो सबसे खूबसूरत ग्लेशियर है इसको देखने के लिए आगे बढ़ते हुए इसी रोड से ही चलें तो आपके लिए आसानी होगा। ये सरक्सा का खूबसूरत मैदान है। यहाँ आपको साफ शिफाफ चश्मे का क्रिस्टल और ख़ामोश पानी के साथ ग्लेशियर का शोर मचाते हुए गदले पानी और शिंखांग ग्लेशियर का खूबसूरत व्यू के साथ शिंखांग पीक का खूबसूरत नज़ारा भी एट ए टाइम आप कर सकते हैं। यहाँ से थले मेडोज़ का चरागाह शुरू हो जाती हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ
साथ बेहतरीन ट्रैकिंग, हाइकिंग, वॉकिंग, कैंपिंग और खेल कूद के साथ साथ जो है जो, क्योंकि डेफिनेटली आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं तो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स हो गए, एक्टिविटीज़ हो गए, उनके लिए बेहतरीन जो है मौजून जगह अगर कंसिडर किया जाता है तो यहाँ से ऊपर की तरफ हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, अपने लाइफ को मोर मेमोरेबल बना सकते हैं। इस तरह से कि आबादी के बाद यहाँ से बाकायदा पास्चर जोन शुरू हो जाता है जहाँ पे माल मवेशी रखे जाते हैं। बेसिकली थले के अंदर 32 से ज़ायद मकामात पर जो है माल मवेशी चराने के लोकेशन मौजूद है। आइए हम यहाँ पे खलास हैं, इसमें चलते हैं। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि बल्ती ज़बान में खलास कहा जाता है। ये यहाँ पे माल मवेशी चराने के लिए यहाँ पे लेके आते हैं। और ये जो देगची नज़र आ रहा है बड़ा साइज़ का, और ये जो आला है बेसिकली ये जदीद टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और एट द टाइम 1 या 2 या 3 जगहों पे लस्सी बनाए जाते हैं, जबकि पुराने ज़माने में ये और कोई तरीक़ाकार से तैयार किया जाता था, लेकिन अब ये बहुत एक मुफीद और कारामत तरीक़ाकार है जिससे ईज़िली लोग को यहाँ पे इसको ऑटो रन करके चले जाते हैं और जब वापस आ जाते हैं तो ये तैयार हो चुके हैं। आइए हम का सुल्तान अली साहब से भी पूछते हैं ये किस तरह से तैयार होती हैं। अच्छा 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 बेसिकली थले के अंदर अब ये ट्रेन्स बिल्कुल आलमोस्ट मांद पड़ गई हैं और ख़त्म होने जा रही हैं, बहुत कम तादाद में रह गए। जब पहले ज़मानों में हर गांव के 2-2, 3-3 क्लास हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरी गांव के जो है कलेक्टिवली अगर जमा भी कर लें तो भी मतलब एक ही क्लास बड़ी मुश्किल से जो है रन कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े अलमिया है। लेकिन लोगों को लेटेस्ट तरीक़ाकार से इसको मज़ीद एडवांस की तरफ लेके जाने के बजाय लेकिन हम इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काबिल अफ़सोस हैं। अभी हम यहाँ पे का सुल्तान अली के साहब के पास से यहाँ चाय का अहतमाम किया है। आए हम पहले इनके पास से नमकीन चाय के साथ यहाँ के जो ट्रेडिशनल एक ऑर्गेनिक फूड को हम खाने की कोशिश करते हैं और दोमान भाई से भी राय लेते हैं कि ये लस्सी दूध वाला कैसे बनते हैं। आए उनसे भी एक बात करते हैं। ये दूध अभी बिल्कुल अच्छा जमाने के लिए रखें, ये बिल्कुल बल्कि तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, बस सिर्फ जाके बनाना बाकी रह गए। अभी दोमान भाई भी इस चीज़ में बहुत माहिर हैं। अभी इम्तियाज़ भाई बेटा और ये लोग फरमान लोग इन सब को जो है इतना पता नहीं है, लेकिन हम दोमान से इस बारे में थोड़ा सा मालूमात लेते हैं। दोमान भाई जी दरबा लिखे या मशीनी नाम शाह लिखे टोटल टाइम चाम से लगाई बन जो घंटा चिक जो तो मतलब जी मैं बे तामी से प्रोसेस सर जो हो जितना रास्ता ता से देखो मार लेमो जो गांव अच्छा। बाकी से ता देखो मार लेमो जो जैसे दी दौर पूछन हो से गांव खास हो में जो सही अच्छा गमगा गांव तामी दूसरे गांव पछमन रात को तामी अच्छा अच्छा चीज बा जो घंटा जी ठीक। घंटा का पौने घंटा आशीष बा में जो रहमो वाला अच्छा दो बार लगे फोटो बिता से आए से आधा घंटा हो रात को था जो सही जो दो बार लगा आए से कोल में तामी जो सही जो नॉर्मल आधा घंटा में ता न जो देन को जो अच्छा। जब दे दालबों आए मार बिशो जो मार बिशो दे दालबों आए से छोसा बिन कले आए से जगह थप पिक कले जो हो लिया में तामी जो सही मैं ताज को पकाई वैसे ना कोई दस क्यों छू वहाँ से फर्स्ट टाइम जो वहाँ से चाक से क्यों से वहाँ से देखो मार्केटिंग हो तो रिश्तेदार या मार्केटिंग ना रोजगार होता नहीं से आज भी खड़े तो मैंने जो आए बेरोजगार होता है कोई से मार्केटिंग चोंग होती है सही गोमगे ज़माने में और फीस वगैरह से तो और फीस दो चिकन तन में तैयार हो ये सर दे अच्छा दूसरे दी दही ये जुते दियो के ना दी और फीस बुती ले जबीन जुते अच्छा, दियो अच्छा। दियो वहाँ से खाता बच्चा तो जो वहाँ से आती यहाँ तो ले हम मेहमान सोना जो स्पेशल फोन दियो का वाला अच्छा फिर कहाँ पे जो जो अच्छा देखो थप के ताज हो यामो में से हो जो बनाई गई जो बेस पे बाल ताना रखो ला खेल बहुत जायका हो अच्छा जायका है यामो मेहमान आए स्पेशल खूब अच्छा स्पेशल दो से जो बहुत बहुत शुक्रिया जो बासिस मेहरबानी थैंक यू। ये जगह मैसिक पे कहा जाता है, यहाँ से जो है हपन दबला हम के लिए जाते हैं। पानी यक ठंडा है, कोई ये थलेलाग के पास जो स्नो मेल्ट होके और चश्मे का पानी है, बहुत ज़्यादा यक ठंडा है। और हमें दूसरा रिवर को भी जो सबसे ज़्यादा तादाद में पानी है उसको भी क्रॉस करनी है। आइए देखते हैं। ओई बहुत ज़्यादा ठंड है। तो क्या यहाँ पे कुछ गेस्ट बैठे हुए हैं, बेसिकली हमारा मकसद उनसे जाके बात करना है और उनके ओपिनियन लेना है कि वो थले के बारे में क्या कहते हैं।
तो आई ठंड ये पानी तो वही जहाँ पे कुछ लोग तशरीफ़ फरमा हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा राय लेते हैं। जो लोग हैं बहुत तमीज़दार, मोहब्बती और क्या मैं कहूँ, जो उर्दू में क्या लफ्ज़ है उसका, इनमें घमंड नहीं है, इनमें बहुत नरमी है। सही। और ये बहुत तैयार है लोगों के साथ काम करने के लिए, बहुत तमीज़ से पेश आते हैं और अपनी जो लिमिटेशंस के अंदर हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों को आराम पहुँचे और आए। और इनकी टेम्परामेंट जो है उनमें, जहाँ तक मैंने देखा है, उनका बिल्कुल ठंडा दिल और ठंडा दिमाग। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कंपेयर टू जो दूसरी जगह है पाकिस्तान में जहाँ मैंने ट्रेक किया है, जो पहाड़ और बर्फ़ और हरापना और जो लैंडस्केप मैं कह सकती हूँ, ये मुझे नज़र नहीं आया कहीं और। मैं ये कह दूँ, जो मेरे कज़न्स हैं बहुत हाइकिंग वगैरह करते हैं, तो उसका मेरा भाई का फ़ोन आया था कि बाजी अगर आप जा रही हैं तो देख लें। आप तो लंदन इंग्लैंड में भी काफ़ी किया आपने, बाहर किया, इतना फ़र्क नहीं है। मगर मैं तो जब मैं बात करूँगी उससे, मैं कहूँगी उससे कि नहीं, तो मैंने यहाँ देखा है दुनिया की हसीन जगहों में आपको नहीं मिलेगा। ये जो बल खाती ज़िगज़ैग जो दरिया आपको नज़र आ रहे हैं और इस खूबसूरत व्यू को आप देखें तो ये बेसिकली आपको दो रास्ते हैं, एक मशरिक़ की साइड से, एक मग़रिब की साइड से। अगर मशरिक़ की साइड से आप जाएंगे तो आप शाह मासूम के आस्ताना मुबारक की तरफ जाएंगे, जबकि आप मग़रिब की साइड से जाएंगे तो थलेला को जाने का रास्ता भी इसी ट्रैक से गुज़रती हैं। अगर हम बात करें थलेला के ट्रैक का तो ये 4557 मीटर्स पर मौजूद एक इंतहाई बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है और यहाँ से आपको थले वाल्स का भी खूबसूरत नज़ारा करने को मिलेगा, जो कि तमाम टूरिस्ट का जो है आरज़ू बने रहते हैं कि वो थले वाल्स को एक दफ़ा देखें। तो थले वाल्स भी आप छुछल के मुकाम पर स्टे करने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। और एक दिन के लिए स्टे करना चाहें तो फिर एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे अगर आपको अच्छे गाइड मिल गए तो वहाँ से आप नंगा पर्वत, ब्रॉड पीक, गशब्रुम फोर और माशब्रुम के साथ रकापोशी का इंतहाई ऊपर का हिस्सा और द्यामिर का भी, ये पहाड़ जो मुझे नज़र आ रहा था कि द्यामिर का एक बहुत खूबसूरत पहाड़ का पीक का एरिया आपको देखने को मिलेंगे एक साथ में एक ही लोकेशन से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केटू जो है माशब्रुम के पीछे होने की जगह से इस जगह से आपको नज़र नहीं आ रहा है, जबकि आपको लोकेशन को थोड़ा तब्दील करेंगे तो आगे से आपको केटू भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो सामने खूबसूरत पास्चर नज़र आ रहे हैं ये थलेला का ट्रैक हैं जो आपको शिगर सरेना तक मिलाती हैं। आप देख सकते हैं हमारे टीम के कुछ जो बाकी मेंबर है वो आलमोस्ट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, बाकी हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुके हैं। देखें यहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह यहाँ पे सामान वगैरह उतार रहे हैं और ये लोग रिलैक्स कर चुके हैं, कुछ अभी एंजॉय कर रहे हैं, कुछ आगे पीछे देख रहे हैं और सारे इस खुशी में हैं कि हम थलेला के टॉप पे पहुँचे हैं। 4557 फीट की हाइट पे हम आलमोस्ट मीटर्स की हाइट पे हम पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम हमारे दूसरे साथी जो जैसे ही मतलब यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम नीचे की तरफ उतर जाएं और शिगर के साइड के खूबसूरत और दिल फरेब और लश ग्रीन पास्चर से होते हुए ब्रांसा तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला कि हम कोशिश करेंगे आपको खूबसूरत व्यूज़ लेकर आते रहें और आपको बेहतरीन गाइड करते रहें और बेहतरीन तर्जुमानी करें ताकि जो आने वाले सयाह हैं वो लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ इस खूबसूरत के बारे में बेहतरीन फ़ीडबैक दे सकें। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जस्ट हमारी जो गिलगित बल्तिस्तान की हिडन ब्यूटीज़ को एक्सप्लोर करने के हवाले से लोगों को एक हमारे बिहार पे अगर किसी के लिए भी फ़ायदा हो जाते हैं तो फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रज़ा के ख़ातिर हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो माउंटेन व्यू GB को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स में अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।